اردو زون 24 میں خوش آمدید۔ موسٹ بولڈ اردو رومانٹک ناول عشق عالم۔ پڑھتے ہیں اپنے ناول کی اگلی قسط کی جانب۔ شہر پہنچتے ہی وکٹر کی گاڑی اس کو لینے پہنچ گئی تھی۔ ڈرائیور گاڑی چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ شپ کے سارے سفر میں روشنی نے وکٹر سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وکٹر مسلسل فون پر بزی تھا۔ روشنی جب وکٹر کی گاڑی میں بیٹھ رہی تھی تبھی کچھ آدمی روشنی اور وکٹر کی گاڑی کا پیچھا کرنا شروع ہو گئے۔ روشنی جو بکھرے بالوں کو سمیٹ رہی تھی، اس نے وکٹر کی طرف دیکھا جو بڑی سنجیدگی سے اب گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اتنی سنجیدگی جو کسی طوفان کے آنے کا اندیشہ دے رہی ہو۔ وکٹر، تم نے صبح جو نوٹ… روشنی نے وکٹر کی طرف ابھی دیکھ کر بات ہی شروع کی تھی کہ وکٹر نے اسے بازو سے پکڑتے ہوئے سیٹ سے نیچے کیا۔ سیٹ کے نیچے ہو جاؤ، وکٹر نے یہ کہتے ہوئے گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ روشنی یہ سب دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ روشنی کچھ بولتی، وکٹر کی گاڑی پر فائرنگ شروع ہو گئی۔ پیچھے آنے والی دو گاڑیوں میں سے فرنٹ کی دونوں ونڈو سے آدمی باہر نکل کر وکٹر کی گاڑی کو نشانہ بنا رہے تھے۔ وکٹر گولیوں سے بچنے کے لیے گاڑی کو پوری طرح ڈرائیو کر رہا تھا۔ روشنی اپنے سر کے پیچھے ہاتھ رکھتے ہوئے نیچے کو جھک گئی۔ پیچھے آنے والی گاڑیاں مسلسل فائرنگ کر رہی تھیں۔ روشنی گاڑی کی سیٹ کے نیچے پسٹل پڑی ہے، جلدی سے نکالو۔ وکٹر کی بات سنتے ہی روشنی نے جلدی سے گاڑی کی سیٹ کے نیچے سے پسٹل نکال کر وکٹر کو دی۔ وکٹر گاڑی تیز رفتاری سے چلاتا ہوا آگے کی پرواہ کیے بغیر گاڑیوں کو ٹکر مارتا ہوا ان سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ لو پسٹل۔ روشنی نے پسٹل وکٹر کی طرف کی۔ وکٹر نے روشنی کی طرف دیکھا۔ تمہیں گاڑی ڈرائیو کرنی آتی ہے کیا؟ وکٹر جو آگے ٹریفک سے رستہ بناتے ہوئے روشنی کی طرف دیکھ کر بولا۔ روشنی جسے ڈرائیو آتی تھی وہ بتانا نہیں چاہتی تھی، لیکن اب بات اس کی جان کی بھی تھی۔ اس نے مثبت میں سر ہلایا۔ اوکے، تو آجو سیٹ پر اور گاڑی کو سنبھالو، میں ان بغیرتوں کو سنبھالتا ہوں، وکٹر نے روشنی کو کہا اور روشنی جھکتی ہوئی وکٹر کی سیٹ پر آئی جہاں وکٹر بیٹھا ہوا تھا۔ وکٹر کی سیٹ پر آنے کے لیے روشنی کو وکٹر کی گود میں بیٹھ کر گاڑی کو سنبھالنا تھا۔ روشنی کو اس وقت اپنی جان کی پرواہ تھی۔ اس نے جلدی سے گاڑی کے اسٹیئرنگ کو کنٹرول کیا اور وکٹر کی گود میں بیٹھتے ہی گاڑی کے بریک اور ریس کو سنبھالا۔ وکٹر نے ایک لمحے کے لیے روشنی کی طرف دیکھا۔ موقع ہمیشہ غلط ٹائم پر ہی کیوں آتے ہیں؟ وکٹر یہ کہتا ہوا دوسری سیٹ کی طرف چلا گیا۔ شٹ اپ، نہیں تو میں گاڑی روک دوں گی، روشنی شرم سے سرخ ہو گئی۔ وکٹر نے روشنی کی بات اگنور کرتے ہوئے ونڈو سے سر باہر نکالا اور پیچھے آتی گاڑیوں کو جوابی فائرنگ کرتے ہوئے روک رہا تھا۔ روشنی نے گاڑی کا کنٹرول سنبھالتے ہی اس کی رفتار 180 پر لے گئی۔ آگے چلتی ہوئی گاڑیوں میں سے رستہ بناتے ہوئے وہ آگے کو بڑھ رہی تھی۔ وکٹر کبھی گولی سے بچنے کے لیے اندر ہو جاتا تو کبھی جوابی کارروائی کے لیے پھر فائرنگ کرتا۔ وکٹر نے جیسے گاڑی پر وار کرنے کے لیے سر باہر نکالا تو پیچھے آنے والی گاڑی نزدیک آ چکی تھی۔ وکٹر کی نظر آگے ڈرائیو کرتے ہوئے آدمی پر پڑی جسے وہ بھول نہیں سکتا تھا۔ وہ کایا کا آدمی تھا۔ پیچھے آتی گاڑیاں اب نزدیک آ رہی تھیں۔ وکٹر، اندر بیٹھ جاؤ، روشنی نے وکٹر کی شرٹ سے اسے اندر کی طرف کھینچا۔ کیا ہوا ہے؟ مجھے روک کیوں رہی ہو؟ وکٹر نے اندر آتے ہی روشنی کی طرف دیکھا۔ تمہیں زیادہ مرنے کا شوق ہے تو میرے ہاتھ سے مر جاؤ، میری جان بھی چھوٹ جائے گی۔ اب بیلٹ باندھ لو، ان جیسوں سے مجھے نمٹنا آتا ہے۔ روشنی کو اس طرح بولتے دیکھ کر وکٹر شاکڈ ہو گیا۔ وہ روشنی کو ایک ناسمجھ اور پلان خراب کرنے والی لڑکی سمجھ رہا تھا، لیکن یہ تو کچھ اور ہی تھی۔ روشنی کے کہنے پر وکٹر نے بیلٹ باندھ لی۔ روشنی نے پھر اپنی وہ صلاحیت دکھائی جو وہ لاس اینجلس آتے ہی اس نے کار ریسنگ میں سیکھی تھی۔ گاڑی تھی کہ روشنی اسے کسی جہاز کی طرح اڑا رہی تھی۔ آگے آتی بس سے روشنی نے جو ٹرن لیا، وکٹر کو لگا کہ وہ آج اس دنیا سے گیا، لیکن روشنی نے بڑی مہارت سے گاڑی کو بس سے نکالتے ہوئے آگے لے گئی۔ اس سے پیچھے آتی ہوئی گاڑیاں بس کی وجہ سے وہیں رک گئی۔ سڑک پر یوں فائرنگ سے پولیس بھی ان گاڑیوں کے پیچھے لگ گئی تھی۔ پولیس کو ایسے پیچھے آتا دیکھ کر کایا کہ آدمیوں نے اپنی اپنی گاڑیاں وہیں پر چھوڑیں اور وہاں سے بھاگ گئے۔ روشنی نے گاڑی کو چلاتے ہوئے رستوں میں سے رستہ نکال کر سیدھا وکٹر کے ہوٹل کے پاس لے گئی اور ہوٹل کے گیٹ کے سامنے گاڑی روکی۔ واؤ، کیا گاڑی چلائی! آئی ایم امپریسڈ۔ گاڑی رکتے ہی وکٹر نے روشنی کی طرف دیکھا جس کی غصے سے آنکھیں اب سرخ ہو رہی تھیں۔ تم گاڑی سے اترو اور جا کر شراب پیو، جو تمہارا کام ہے، میں کچھ کام کر کے آتی ہوں، روشنی نے وکٹر کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ روشنی کی بات پہ وکٹر سمجھ گیا تھا کہ روشنی کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ وہ کایا کے بندے تھے۔ اوکے، تو تمہیں بھی پتہ چل گیا کہ وہ کایا کے آدمی تھے۔ وکٹر کی بات پر روشنی نے فوراً وکٹر کی طرف دیکھا۔ یہ انسان ہے کہ کیا مجھ سے پہلے ہی اسے سب پتہ چل جاتا ہے؟ روشنی وکٹر کی طرف دیکھ کر سوچ رہی تھی۔ تم اترو گی گاڑی سے کہ نہیں؟ روشنی نے وکٹر کی بات کا جواب دیے بغیر بولی۔ اوکے، کایا کو میرا ہائی بول دینا، وکٹر یہ کہتے ہوئے گاڑی سے اتر گیا۔ وکٹر گاڑی سے اترتے ہی روشنی تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے ہوئے آگے چلی گئی۔ وکٹر نے روشنی کو اس طرح جاتا دیکھ کر فوراً ریان کو کال کی اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔
रेयान, जो होटल में रोशनी का इंतज़ार कर रहा था, विक्टर की बात सुनते ही काया की तरफ निकल गया। कुछ ही देर में रोशनी काया की तरफ थी, जो टेबल पर टांग रखे अंगूर के साथ शराब पीने में मसरूफ़ था। रोशनी ने आते ही गुस्से से दरवाज़ा खोला, जो ज़ोर से दीवार पर जा लगा। काया, ये क्या हरकत थी? रोशनी ने जाते ही टेबल पर दोनों हाथ रखते हुए गुस्से से झुककर काया को कहा, जो शराब पीने में मसरूफ़ थी। बड़े आराम से रोशनी की तरफ देखा, टांगों को टेबल से नीचे किया। ये तो बस एक छोटा सा ट्रेलर था तुम्हारे विक्टर के साथ रात गुजारने का। तुम तो विक्टर को माने गई थी ना, उसके साथ रात गुजारने के लिए नहीं। समझ आई? काया ने गुस्से से टेबल पर हाथ मारते हुए कुर्सी से उठते हुए रोशनी के पास आया। मैं विक्टर के साथ रात गुजारने नहीं गई थी, वह एक इत्तेफाक था। मेरा मकसद विक्टर को मारना है, ना कि उसके साथ सोना। आज आपने जो किया है, अगर मुझे कुछ हो जाता, मुझे गोली लग जाती तो? रोशनी गुस्से से काया पर चिल्लाई। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने बोलो, हाँ? काया को रोशनी का यूं बोलना इंतहाई नागवार गुजरा। हाँ काया, मैं बोलूँगी। अगर आपको मुझ पर एतबार नहीं है तो किसी और से ये काम करवा लें। रोशनी के ये बोलने की देर थी कि काया ने रोशनी के मुंह पर जोर का तमाचा दे मारा। इतने में रेयान फौरन अंदर आया। काया से थप्पड़ पड़ते ही रोशनी ने गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद की। आइंदा मेरे सामने ऊंची आवाज़ में बात की तो तुम्हारी ज़बान हलक से खींच लूँगा। काया ने आगे बढ़कर रोशनी को गर्दन से दबोचा। काया, रुक जाओ। रोशनी के हर काम पर मेरी नज़र है, मैं साथ था रोशनी के। रेयान की बात पर काया ने रेयान की तरफ देखा। तुम दोनों तोता मैना की जोड़ी की तरह एक दूसरे को बचाना बंद करो। काया ने रोशनी की गर्दन को छोड़ते हुए रेयान के पास आया। ये सच है काया, आप उस होटल में कॉल करके मालूम कर सकते हैं जहां हम ठहरे थे। विक्टर अलग था। रेयान ने काया के आगे फ़ोन किया जिस पर एक नंबर था। काया ने अपने फ़ोन से होटल की कॉल की और मालूम किया तो पता चला कि विक्टर इस होटल में नहीं था। कॉल बंद होते ही काया रोशनी की तरफ देखा, जो अपना सांस बंद होने की वजह से खुद को संभाल रही थी। अगर तुमने मेरे साथ गद्दारी करने का सोचा भी तो तुम्हारा वो हशर करूंगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। चले जाओ यहाँ से और मुझे जल्दी अपना काम मुकम्मल चाहिए। काया ने रोशनी को बाजू से पकड़ते हुए बाहर की तरफ धक्का दिया। रेयान ने आगे बढ़ते हुए रोशनी को पकड़ा और बाहर ले आया। काया दोबारा फिर वही पोजीशन पर बैठते हुए शराब पीने में मसरूफ़ हो गया। रेयान ने रोशनी को बाहर आते ही गार्डन में बिठाया। तुम बैठो, मैं पानी लेकर आया। रोशनी का सांस ठीक नहीं हो रहा था। काया की गिरफ्त रोशनी की गर्दन पर इतनी मजबूत थी। रेयान रोशनी से दूर आते ही विक्टर को कॉल मिलाई। जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया है। काया को कॉल करवा दी थी होटल में। उसे अब यकीन आ गया था, नहीं तो वो आज रोशनी को मार ही देता। रेयान जब काया की तरफ आ रहा था तभी विक्टर ने रेयान को कॉल करके सारा प्लान समझा दिया था। विक्टर को अंदाज़ा था कि वो क्या करेगा, इसलिए उसने रोशनी को बचाने के लिए रेयान को आगे किया और इस तरह विक्टर के प्लान से रोशनी बच गई। रेयान ने विक्टर को बताकर कॉल बंद कर दी और रोशनी के लिए पानी लेने चला गया। ये लो रोशनी, पानी। रेयान ने आगे बोतल की। रोशनी ने पानी की बोतल पकड़ते हुए रेयान की तरफ देखा। रेयान, हमें जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो काया। रोशनी बात करते रुक गई। कुछ नहीं होता रोशनी, तुम आराम से पानी पियो और फिर अपने फ्लैट में चलो। अपना हुलिया ठीक करो, कपड़े तब्दील करो, क्या हाल बनाया हुआ है। रेयान ने फ़ौरन बात तब्दील कर दी कि कहीं रोशनी ये ना पूछ ले कि तुमने कौन से होटल में बात करवाई थी, क्योंकि वो होटल भी विक्टर का था जिसमें रेयान ने काया की बात करवाई थी। हाँ ठीक कह रहे हो, मुझे थोड़ा आराम की ज़रूरत है। रोशनी ने अपने कंधे को दबाते हुए वहाँ से वो उठ खड़ी हुई। रेयान भी रोशनी के साथ उठ गया। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम्हारी हालत भी ऐसी नहीं है कि तुम ड्राइव करो, और वैसे भी जिस गाड़ी में तुम आई हो उसकी अब ऐसी हालत नहीं है कि उसे लेकर जाया जाए। रेयान की बात पर रोशनी ने इस बात में सर हिलाया और रेयान के साथ चल पड़ी। बाहर आते ही उसने रेयान की गाड़ी की जगह कोई और गाड़ी देखी जो विक्टर ने रेयान को रात में दी थी, लेकिन रोशनी को इस बात का इल्म नहीं था। ये गाड़ी किसकी है? रोशनी गाड़ी में सवार होते हुए रेयान से पूछ बैठी। अपनी ही है, तुम अपने दिमाग पर जोर ना दो, आराम करो। रेयान ने बात टाल दी और रोशनी ने गाड़ी की सीट पर टेक लगा लिया। थोड़ी देर में वो रेयान रोशनी के फ्लैट के पास था। उसने गाड़ी से उतरते ही जल्दी से जाकर रोशनी की तरफ का दरवाज़ा खोला और रोशनी का हाथ पकड़ते हुए उसे नीचे उतारा। रोशनी के चेहरे पर काया की उंगलियों के निशान पड़ चुके थे, जो अब मज़ीद सुर्ख हो रहे थे। रोशनी फ्लैट में आ चुकी थी। उसने शावर लिया और बर्फ़ के टुकड़े से अपने गाल के थप्पड़ की जलन को अब ख़त्म कर रही थी। रेयान रोशनी के लिए चाय बनाकर ले आया। लो ये चाय पियो तुम, थोड़ा सुकून मिलेगा तुम्हें। रेयान ने चाय का कप रोशनी की तरफ किया। थैंक्स रेयान, तुम ना होते आज तो पता नहीं क्या हो जाता। रोशनी ने कप पकड़ा।
रेयान, वो कौन सा होटल था जिसमें तुमने काया की बात करवाई थी? रेयान रोशनी की बात पर चौंक गया। उसे लगा था कि रोशनी भूल गई होगी, लेकिन उसके दिमाग में भी मेमोरी चिप थी जिसमें वो बातें सेव कर लेती थी। रोशनी, मैंने कहा ना, अभी कोई बात नहीं, अभी तुम आराम करो, ये चाय पियो और थोड़ी देर सो जाओ, मैं दोबारा आऊँगा। एक दो काम है काया के करके, तब तक तुम सो जाओ, ओके? रेयान ने काया का नाम लेकर इस बात से अपनी जान छुड़वा ली। रोशनी ने रेयान की बात पर खामोशी इख्तियार कर ली। वो खुद थोड़ी देर आराम करना चाहती थी। रात की सर्दी, फिर सुबह का वाकया और फिर काया का थप्पड़ ने उसके दिमाग को हिला कर रख दिया था। ठीक है रेयान, लेकिन आ जाना लाजमी। रोशनी ने चाय का घूंट लिया और कंबल को अपने ऊपर किया। रेयान कमरे की लाइट ऑफ करते हुए रोशनी को खुदा हाफिज कहकर चला गया। रेयान के जाते ही रोशनी ने साइड लैंप की लाइट जलाई और अपने ऊपर कंबल ओढ़कर लेट गई। अपने सामने रखी अपनी माँ की तस्वीर को देखते हुए वो नींद की वादी में खो गई। विक्टर रोशनी को सोते हुए देख रहा था, जो कंबल ओढ़े पुरसुकून होकर सो रही थी। रोशनी के पास से जाते ही रेयान ने विक्टर को सारी सूरत-हाल से आगाह कर दिया था, लेकिन काया ने जो रोशनी को थप्पड़ मारा था, वो नहीं बताया था। विक्टर का यूं रोशनी को बचाने के लिए इकदामात करने से रेयान के दिमाग में जो विक्टर का तस्वुर बना था, वो काफ़ी हद तक तब्दील हो गया था। इसी वजह से वो विक्टर को रोशनी की सूरत-हाल से आगाह कर रहा था। एक वही था जो काया को उसके मुताबिक निमट सकता था। विक्टर के साथ रहने के लिए विक्टर को समझना भी ज़रूरी था और ये काम रेयान कर रहा था। रेयान के बताने के बावजूद विक्टर को सुकून नहीं मिला और वो रोशनी को देखने के लिए उसके फ्लैट में आ गया। वो काया को अच्छे से जानता था, इसलिए जब तक वो रोशनी को खुद अपनी आंखों से ना देख लेता उसे सुकून नहीं मिलना था। रोशनी के फ्लैट पर आने के बाद उसने देखा कि रोशनी आराम से सुकून से सो रही है, तो उसे तसल्ली हो गई। विक्टर ने उठते हुए रोशनी के कंबल को उसके ऊपर बड़े आराम से किया, जो उसकी कमर तक आ गया था। कंबल की हरकत से रोशनी, जो दाएं तरफ रुख करके लेटी थी, खुद को सीधा किया। रोशनी की इस मूवमेंट पर विक्टर अभी पीछे हटने ही वाला था कि उसे रोशनी के चेहरे पर सुर्ख निशान नजर आए, जो उंगलियों के निशान थे। निशान को देखते ही विक्टर का पारा हाई हो गया। वो गुस्से से काया की तरफ जाने के लिए मुड़ा ही था कि अपने पीछे रेयान को खड़ा देखा, जिसने थोड़ी देर बाद आना था। विक्टर ने रेयान की तरफ गुस्से से देखा और फिर बाहर निकल गया। रेयान ने रोशनी की तरफ देखा, जो मीठी नींद सो रही थी। रेयान आराम से दरवाज़ा बंद करते हुए बाहर निकल आया। विक्टर, विक्टर, मेरी बात सुनते जाओ। विक्टर गुस्से से गाड़ी में बैठ रहा था जब रेयान ने उसको आवाज़ दी। रेयान की आवाज़ सुनकर विक्टर वहीं रुक गया। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? विक्टर चलता हुआ रेयान के पास आया और उसकी कॉलर से पकड़ते हुए गुस्से से देखा। विक्टर, होश से काम लो। तुम्हें अगर रोशनी की इतनी परवाह है तो ये सोच लो, अगर तुम इस वक्त काया को कुछ करोगे तो बात और बिगड़ जाएगी और इसमें नुकसान रोशनी का ही होगा। रेयान ने विक्टर का हाथ अपने कॉलर से नीचे किया। रेयान की बात विक्टर के दिमाग में आ चुकी थी। मुझे किसी की परवाह नहीं है, ओके? विक्टर रेयान की बात सुनकर अनजान बन गया था। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को कोई नुकसान हो। रोशनी मेरे काम से गई थी मेरे साथ, और ये जो कुछ हुआ है मेरे काम की वजह से हुआ है, बस। विक्टर की आवाज़ अब धीमी थी। वो रेयान से इतना ही कह पाया था और फिर गाड़ी की तरफ चला गया। रेयान ने गहरा सांस लिया। मामलात मज़ीद ख़राब हो रहे थे। रेयान वो कुछ देख रहा था जो विक्टर और रोशनी को भी नहीं दिख पा रहा था।